सिक्किम में घुसपैठ पर नियंत्रण के लिए इनर लाइन परमिट की मांग करते हुए आज हामरो सिक्किम पार्टी के सदस्यों समेत अर्जुन पुरस्कार विजेता बाइचुंग भूटिया ने जिला उपायुक्त परिसर में धरना प्रदर्शन किया। हामरो सिक्किम पार्टी ने इस दौरान राज्य में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू करने का संकल्प पारित करने के लिए 16 अक्टूबर को जन संसद की घोषणा की है। इसे गृह मंत्री अमित शाह को सौंपा जाएगा। I think we need to protect Article 371F. To protect Article 371F, inner line is only the solution for us. An inner line permit is already been granted to Manipur, Mizoram, Nagaland, and Arunachal. Four states are already been given. Why not? Why can't we get it? Why can't we get it? Why can't we get it? Amit Shah ji has already given a gift to Manipur before Manipur election just 1.5 years ago. We want the same gift because Sikkim security is not for Sikkim only, it's also for India. So I think for our great country India, it's very important that Sikkim is safeguarded so that we also help in safeguarding our great nation India. We all have to be united. We need to safeguard Sikkim. We need to make sure we all fight for inner line permit, and inner line permit on the 16th we will give you more detail. We will make sure that inner line permit is very easy, accessible to everyone so that everybody can get that inner line permit so that we have a data of people coming and going out of Sikkim. We want people to come and work here. Yes, they can come and work, but they need to have inner line permit. We want tourists to come into Sikkim. Yes, they need inner line permit. So that we have a data of who's coming, who's going, because look at the crime rates right now Sikkim is going through. Look at the amount of drugs that's coming. Look at unemployment that's coming through. And that is going to only happen through is inner line permit. When we have data of people coming and going out, that is where we will solve it. और हामरो सिक्किम पार्टी का कहना है कि राज्य में घुसपैठ पर रोक लगाने, फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, फर्जी वोटर कार्ड आदि का पता लगाने के साथ ही ड्रग्स तस्करी और अन्य अपराधों को रोकने के लिए ILP लागू होना बेहद जरूरी है। See, I think I've given you a data of last election 2019. I've given you a data, whereas Sikkim has become the #1 state in terms of vote percentage increase in vote percentage, 17%. Look at Bengal and Bihar today. You know, they were only 11%, 2014 to 19, whereas Sikkim's fertility rate is very, very lowest in country today. Whereas Bihar is highest in country, Bengal is 45% more fertility rate than Sikkim. Despite that, only 11% is what Bengal and Bihar has got in terms of increase in vote. So Sikkim has got 17%. That shows that there's a fake voters card that has been already made. And these are where I think the demography is going to be changing. In terms of job, unemployment, everything I think is going to be only solution is inner line permit. और इधर हामरो सिक्किम पार्टी के धरना प्रदर्शन पर सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव तथा पार्टी प्रवक्ता जेकब खालिंग ने आरोप लगाया है कि हामरो सिक्किम पार्टी के नेता बाइचुंग भूटिया और सामाजिक राजनीतिक संगठन सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम राज्य में शांति का माहौल बिगाड़ रहे हैं। हमेशा छोटे छोटे मुद्दों को उछाला जाता है, विरोध प्रदर्शन कर राज्य की शांति को भंग किया जाता है। खालिंग ने धारा 371F को लेकर बाइचुंग भूटिया के विरोध पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उसे ड्रामा बताया है। बाइचुंग भूटिया का नाम तो नहीं लिया, मगर आप बाइचुंग भूटिया को भी बोल रहे थे कि वो आज जो गैंगटॉक में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो 371F बचाने के लिए नहीं है, उनका ये नाटक ही बोल के बोला। इस पर भी बात विस्तार से बोला। अगर बाइचुंग का विगत देखे तो एक पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक सीजनल पॉलिटिशियन है। जब सिक्किम के चुनाव होता है तो सिक्किम में आके वो यहाँ हुलदंगा करने का कोशिश करता है। अगर जब सिक्किम से बाहर दूसरे राज्य में इलेक्शन होते हैं तो सिक्किम का वोट से अपना नाम हटा के उस राज्य के वोटर लिस्ट में अपना नाम डाल के वहाँ चुनाव लड़ने चल जाते हैं। विगत में सिक्किम से नाम हटा के 2 बार वो सिक्किम के बाहर चुनाव लड़ चुका है और वो एक सीजनल पॉलिटिशियन है और वहाँ यहाँ आके सीजनल इश्यू उठाते हैं। इसलिए मैं उनसे ये और जो आज वो 371F के प्रोटेक्शन के नाम पे धरना दे रहे हैं, मैं ये जिम्मेवारी के साथ बताना चाहता हूँ कि वो 371F के प्रोटेक्शन के लिए धरना नहीं दे रहे हैं। वो खुद का एक राजनीतिक वजूद जो समाप्त हो चुका है उसको बचाने के लिए 371F को ढाल बना के वो आज धरना बैठ रहे हैं। नहीं तो जिस आदमी ने सिक्किम से अपना वोटर लिस्ट से वोट नाम ही कटवा लिया, नाम ही मिटा लिया,
वो 371F के वकालत कैसे कर सकता है? ये तो उसके नैतिकता से भी मना करता है। जी हाँ, ये थे एसकेएम पार्टी के प्रवक्ता तथा मुख्यमंत्री के राजनीतिक जेकब खालिंग, जो सिक्किम में अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, विशेष करके सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम की ओर से, वो सिक्किम प्रोग्रेसिव यूथ फोरम सिक्किम में शांति भंग करने की प्रयास करे से ऐसा आरोप उनका लगाना है। और भाईचुंग भूटिया ने जो मांग रखी है, उनको भाईचुंग भूटिया ने को भी उन्होंने सीजनल पॉलिटिकल व्यक्ति का संज्ञा दिया है। कैमरा पर्सन विनय तामांग के साथ प्रकाश अधिकारी, नॉर्थ ईस्ट लाइव।